Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and now you are preparing pretty well for your upcoming examination. So this video was the most requested video by all of you related to what EYQs are there in the previous examination conducted by ICMR, and apart from that previous year questions you have also requested me to provide that in the non-domain part of your syllabus prescribed in the advertisement, what are they going to be asked, right? So related to the general knowledge, general aptitude, and aptitude के अलावा reasoning, and you're also having English, general English. So these are included in the non-domain part of your syllabus. So you all have requested me to provide a guidance related to that, what you need to prepare, what topics are important for all these non-domain part, as you don't want to invest a lot of time in that because the weightage of your subject is more as compared to the non-domain part. So this video will provide you a complete coverage of what you are asking from me. So do watch it. I have collected the different previous year questions from different sources, be it a memory based questions from the previous uh, who have attempted the examination, and also you have to like take care of the questions and also the topics and the subtopics from where more questions can be generated, right? So before starting the video you need to subscribe the channel so as to make me feel motivated. I will provide more and more content by researching like a lot. So this will be a complete package of the previous examination question pattern analysis, right? So in the previous year paper, we were having 80 questions along with the interview. So weightage was like it has separate weightage for both written as well as interview. But now we are having the weightage of only interview. And your written examination is only for qualifying purpose. So you have to focus on the like at that time both focus on the common section as well as the core subject. Now the goal should be whatever questions are from the non-domain part, you have to like score more of it, or majority of the questions should be able, you should be able to solve it. Now examination pattern of that time like 2020 में examination हुआ था which was conducted by ICMR, right? So in that we were having total 80 questions. From the core subject we were having 60 questions, and from the common section we were having 20 questions, and the negative marking was 0.25. So you can see that you have to prepare like most of your subject, your core subject will be asked, and about 20 questions only you need to prepare for your non-domain part as per the syllabus. So clearly you need to focus more on your own subject, right? You need to focus more on your subject and rather than focusing on only this particular thing. You can, what you can do, just write now, like right from today you need to solve all the questions, like 1 hour आपको सिर्फ देना है, ठीक है? सिर्फ 1 घंटे आपको देने हैं और वेट. So sorry for the interruption. So see, you have to like today is what? Today is Sunday and today is 19th of April. So from today onwards or from tomorrow onwards, try to give about 1 or 1.5 hours, right? 1 or 1.5 hours to the non-domain part regularly, so that this much time is pretty good to solve like mainly 10 to 15 questions out of 20.
Now coming to the point, common sections which includes in our syllabus is this one. This is the current syllabus, right? So this was same as syllabus prescribed in 2020, but this was not included. The reproductive and child nutrition, right? So we have in this time we are having RCH, reproductive and child health care. So this was not the part of that time. And also the syllabus was comparatively, you can say, different from whatever we are having in like 2026 examination. So you can see from research methodology, high weightage questions were asked. What type of questions were asked? All these are from 2020 examination pattern, right, or paper. So the topics which were included in the examination paper was study designs, bias and confounding. As I always told you that this is the third extraneous variable that distorts the relationship between the independent and the dependent variable, right? So this is one of the most important one. Questions were from incidence and prevalence. Incidence is the new cases increasing each day, and prevalence is the disease burden. ठीक है, इतना तो आपको मैंने कितना पूरा याद करवा दिया, रटवा दिया है. Now questions were like this way: which study uses odds ratio? Cohort, case control, RCT, cross sectional. So this type of questions were included previously. So now in our like recent पेपर, लाइक अभी के पेपर में भी ये चीज पूछी जाएगी कि किस तरह से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एसोसिएशन ऑफ मेजर्स. Association of measures is the most important one. I have mentioned you so many times. I have provided you one tabular form comparative sheet, and the video is also on YouTube. You can check it out. So this topic holds a great importance of the whole research methodology. I have told you that one or two questions will be asked from this particular topic. So be prepared for that. In the 2020 examination, you are having this question already, right? So it is now possible that they can ask what is cohort study, what do we use to measure the cross sectional study, what are the association of measures. So anything can be asked, relative risk can be asked. So next one. So in the biostatistic, this is the like most scoring section, and this is the most important one also. So at that time, mean, median and standard deviation was asked, p value was asked, sensitivity and specificity was asked. So you can see questions can be framed like this way: what is the formula of the sensitivity? So we know that sensitivity provides the true positive प्रोवाइड करता है ये. सो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ये हो जाएगा, टीपी इज इक्वल्स टू टीपी प्लस ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे. सो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग इन द वैलिडिटी ऑफ डायग्नोस्टिक test. I have covered everything. So many questions I have provided you in the practice sheet. I have explained you through different illustration, through different daily life examples, so you can understand it. And also I have provided you my own previous video related to biostatistic central tendency calculation. So you can check it out. Now bioethics. So previously in 2020 examination, informed consent was asked and Helsinki declaration was asked. So this year also I have taught you very well. I have taught you like from scratch. So in this way, question can be asked like which principle is equals to patient autonomy, right? Justice, beneficence, autonomy, non-maleficence. So इस तरह से क्वेश्चंस आपको बायोएथिक्स से देखने को मिलेंगे. जितने भी whatever declaration, whatever principles which I have taught you like through historical evidences are all important. So I think bioethics, you all are prepared. Communicable disease. So previously in 2020, we were having topics like TB, HIV, malaria, transmission route, how this particular disease is transmitted, and what type of vaccine. As I told, this is the most important part vaccine. And at my channel, I have one deep and thorough video related to the vaccines. So you can check it out. Now questions can be framed like this way: vector of Kala Azar is what? Or the vaccine required to cure TB is what? The vaccine for this particular disease is what? And I have told you that agent, vehicle,
vector, transmission route, CFR, right? All these things are important for this communicable disease, because all it depends on the communicability, how it is communicated from the healthy individual to the from the patient to the healthy individual. So it can be asked. And also the prevention method, what are the different prevention methods available, be it the chemotherapy, immunotherapy, or something else. Now, non-communicable disease, at that time, uh, disease like diabetes, cancer, and different risk factors associated with the non-communicable diseases or else metabolic diseases were asked. So you can target accordingly different kind of cancer, their origination, the different terminologies included in cancer, what is diabetes, what is type 1, what is type 2, what is gestational diabetes. You have to include each and everything, and also the blood glucose level, like what is the random glucose level recommended, what is the postprandial glucose level recommended. Apart from this, you should also prepare about the glycosylated hemoglobin, right? HB1AC, glycosylated hemoglobin. So question can be like this way: modifiable risk factor is age, genetics, smoking, gender. ठीक है, कौन सा इसमें से मॉडिफाइबल है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको उस टाइम पे भी कराए हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट. नाउ न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि आपका इस बार आएगा, ठीक है. उस बार ये यूनिट इंक्लूडेड नहीं था, बट somewhere it is asked about the PEM. ये मुझे जानने को मिला that PEM was asked. PEM stands for protein energy malnutrition, which is a severe condition affecting this much population, including children, right, under 5 years of age, resulting from inadequate protein and calorie intake. So this is now the most common case nowadays, because most of the people are non-vegetarians, and for the vegetarians we are not taking that much protein which is required by our body. So we are having like deficiency of vital protein in our body, and therefore we can also have certain vitamin deficiencies. So ये इससे related questions पूछे गए थे पिछली बारी. डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी जो है, ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, बी के डेफिशिएंसी से क्या होगा, डी के डेफिशिएंसी से क्या होगा, मतलब जितने भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, लाइक बेरी बेरी से लेके स्कर्वी से लेके रिकेट से लेके सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि आपका तो इस बार स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें मैंने बहुत सारे आपको क्या बताए हैं, आई हैव टॉट यू डिफरेंट स्कीम्स, like different yojanas, you can say different programs. So all those can be asked in your topic, in your course syllabus also, and in your non-domain part. Like GK में भी यही सारी चीजें आती हैं. Now basic microbiology में पिछली बार PCR, ELISA और sterilization से related पूछा गया था. So question can be like this way: autoclave condition किसमें हम क्या करते हैं. So इस टाइप के questions आपको basic microbiology से देखने को मिलेंगे. Now see, PYQs as per different sources which I have gathered here is this way. Ubiquinone क्या है ये पूछा गया था. Cardioliptin is present where, location पूछा गया था. So you should be knowing about what is ubiquinone, what is its function, how it tags protein for degradation, what is cardioliptin, what is its function, सब चीज का क्या है क्या नहीं है, and उससे आसपास के सब topics related आपको पढ़ना है. Non essential amino acid पूछा है, so you should know about the essential amino acid. राइट. अब मुझे लोग बोलेंगे कि ये तो सिलेबस में नहीं है. सो कैन यू थिंक कि लाइफ साइंस का बिना पूछे आईसीएमआर पेपर फ्रेम कर देगा? I have already mentioned so many times in my different videos, be it on YouTube or in my sessions. So I have already told you, like recommended you to cover all the basics. Cell biology, molecular biology, biochemistry, basics तो पढ़ के ही जाओ. And also one question was like this way: quinoa contains what? All essential amino acid. Why, like इसके nutrients क्या क्या हैं वो पूछा था. Trehalose के बारे में पूछा गया था. Acetyl coenzyme A, it does what? It is a key metabolic intermediate. So what is trehalose? Disaccharide to glucose units. ये सारी चीजें पूछा गया था. From cell biology, myelin sheath was asked. What is myelin sheath? What is acrosome? What is ribosomal RNA synthesis, where it occurs, ये सारी चीजें पूछा गया था. लार्जेस्ट WBC क्या है. And from the molecular biology, biochemistry and genetics, we can have questions at that time. And इस time भी possible है. उस time क्या था, we were having all these questions that are possible that इस time पे भी पूछा जाए. What is Ramachandran plot?
व्हाट इज साई, व्हाट इज फाई, ठीक है, ये क्या होता है। रामाचंद्रन प्लॉट में अलाउड रीजियंस क्या होते हैं, ठीक है, अलाउड रीजन्स क्या होते हैं, डिसअलाउड रीजन्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। डीएनए क्लीवेज इज डन हाउ, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या रोल होता है, व्हाट इज क्लीन आउट फ्रेगमेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, वी ऑल नो। इसके अलावा क्रीलॉग सिस्टम क्या है, जीनोम मैपिंग क्या है एंड व्हाट इज लैम, इट इज अ बेसिकली वेरिएंट ऑफ टीसीआर, सो व्हाट इज इट्स फंक्शन। सो इससे आप एक फेयर आइडिया ले सकते हैं कि बेसिक्स भी पूछा है, उस टाइम पे भी तो सिलेबस मियरली सेम ही था ना अभी जैसा, थोड़ा ही डिफर हुआ है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल ऐड हुआ है एंड ऑल्सो वी आर हैविंग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, बाकी तो चीजें सेम ही है। नाउ सी फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी यू कैन सी एंटीबायोटिक मोस्ट इफेक्टिव लॉग फेज में होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं बैक्टीरियाइज फेज में, या ये भी पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक किस फेज में सिंथेसाइज होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टॉक्सिन डिटेक्शन, एलाइजा साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई क्या करता है, साइटोमेगेलोवायरस आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। फिजियोलॉजी या एनाटॉमी से पूछा था लंग सर्फेक्टेंट, यूरेटर लाइनिंग किससे होता है, कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रैटिफाइड नॉन स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज नॉन केराटिन, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया था व्हाट इज रेड बायोटेक, डिजीज एंड डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है। इंसुलिन प्रोडक्शन किस किस से होता है, जीनोम एडिटिंग क्या होता है। जेनेटिक्स से क्या पूछा था, टर्नर सिंड्रोम, व्हाट इज गोट, यूरिक एसिड डिसऑर्डर एक है। एंड अगर मिसलेनियस बायोलॉजी से देखा जाए मुलेरियन मिमिक्री पूछ दिया है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, एस्परजिलस क्या है एंड एज ऑफ साइकार्ड्स। बायोस्टैटिस्टिक्स से पूछा है, बार ग्राफ इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आए थे, रिग्रेशन से नेगेटिव कोरिलेशन एग्जाम्पल आया था, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा। नाउ जनरल साइंस से क्या आएगा, फॉर्मर आईसीएमआर डायरेक्टर एंड डब्ल्यूएचओ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में ये किसी ने कमेंट करके भी मुझे बताया था। सो ये क्वेश्चंस थे पिछली बारी। नाउ डिवीजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट इज रेड बायोटेक, तो रेड अगर पूछा है तो जरूरी थोड़ी कि हर बार रेड पूछेगा, व्हाइट ब्लू येलो ये सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। नाउ लार्जेस्ट बायोम पूछा है, दिस प्रेम्बल आइडियल्स लिबर्टी इक्वालिटी इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नाउ सी एप्टीट्यूड एंड जीके, सो आई कैन टेल यू एप्टीट्यूड एंड जीके जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में जो पूछा जाएगा वो बेसिक इंग्लिश पूछा जाएगा। रीजनिंग में क्या आएगा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर सीरीज 2 4 8 16, तो इनमें से क्या होगा। एंड मैं बता दूं आपको एप्टी में सिर्फ ये चीज़ें पढ़ के जाओ बस, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, डायरेक्शन वाले कैसे होंगे, नॉर्थ साउथ ये ऐसे ऐसे वाले, एनालॉजी एंड सिंपल एरिथमेटिक, तो ये सारे टाइप से क्वेश्चंस आपको आएंगे एप्टीट्यूड में। फॉर एग्जांपल एनालॉजी के क्वेश्चंस कैसे होंगे, हार्ट क्या करता है, पंप करता है, किडनी क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा। सो ये इस टाइप के एनालॉजी क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि रवि ने 10 मीटर नॉर्थ चला, फिर उसके बाद 5 मीटर ईस्ट गया, फिर 10 मीटर साउथ गया, व्हाट इज दी, व्हाट इज वेयर इज ही नाउ, कहाँ पे वो खड़ा है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कैट इज इक्वल्स टू डीबीयू देन डॉग इज इक्वल्स टू व्हाट, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो मिलेगा, प्रोपोर्शन मिलेगा एंड यहाँ पे मैंने और भी बताया है नंबर सीरीज, सिंपल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, तो इससे ज्यादा आपको अपने एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछेगा। जनरल इंग्लिश में एरर डिटेक्शन बोलेगा, कोई सेंटेंस दे देगा उसमें क्या एरर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 100% श्योर, जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सिनोनिम एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो ये आपका जितना अच्छा वोकैब होगा उतना अच्छा आप कर पाएंगे। डेली से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अच्छे अच्छे वोकैब्स को। फिल इन द ब्लैंक पूछ देगा, ठीक है, वो ग्रामेटिकल भी हो सकता है, वो डू एज डायरेक्टेड वाला जैसे हम करते थे क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में, सेंटेंस करेक्शन हो सकता है, बेसिक ग्रामर हो सकता है। तो इंग्लिश में इतनी चीजें पूछी जाएंगी जो आई होप सो कि आप कर लेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिक्वेस्टेड पार्ट, जीके। जीके में क्या क्या चीजें आएंगी, सो फोकस विल बी ऑन साइंटिफिक प्लस हेल्थ बेस्ड जीके एंड नॉट दी जनरलाइज्ड जीके, ठीक है, जो यूपीएससी में जीके आता है वैसा हमें नहीं पढ़ना है। वी हैव टू फोकस दिस मेन थिंग दैट वी आर अप्रोचिंग one exam that is related to health, so we have to keep in mind that we have to like uh, we have to be aware about the current affairs related to the health, biomedical sciences, research इन सब से related।
सो मोस्टली फैक्चुअल चीजें होंगी, 5 से 10 क्वेश्चन जीके के आपके हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि रैंडम या स्टैटिक जीके होगा। स्टैटिक मतलब कोई फिगर आ गया, कुछ डायनामिक फिगर या स्टैटिक एक फिगर आ गया, वैसा टाइप का। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज कहाँ बनता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आपको पूछे जा सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, आयुष्मान भारत क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, टारगेट 2025, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, ये मैंने आपको बताया था किसमें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में बताया था। टीबी एलिमिनेशन टारगेट ईयर, ये तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन ऑन वैक्सीन अंडर यूआईपी, कौन कौन से वैक्सीन इंक्लूडेड है यूआईपी में, ये मैंने सॉल्व करवाया है अगर आपको याद है तो। आईसीएमआर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनिसेफ के बारे में पढ़ो, डीबीटी क्या है वो पढ़ो, डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर जिनेवा। आईसीएमआर क्या है, एपेक्स बॉडी है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अभी करंट डीजी कौन है, ठीक है, करंट डीजी कौन है आईसीएमआर का, एंड डिफरेंट parts of administrative I have already explained in the video. Now health current affairs होने चाहिए लास्ट 1 to 2 years का। डिजीज आउटब्रेक, ये तो 100% इम्पोर्टेंट है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा करंट अफेयर्स में, तो इसको लिख के ले लो। किसी ना किसी डिजीज, जैसे कोविड के बारे में जैसे मैंने बताया था इन माई सेशंस, कोविड पूरा पढ़ के जाओ। नीपा का अभी चल रहा है वो पढ़ के जाओ। बेंगलुरु में अभी एक आउटब्रेक आया था, जीबीएस सिंड्रोम आया था। अभी हेपेटाइटिस का आउटब्रेक चल रहा है। So whatever be the outbreak in different areas of our country, do cover it, the causative agent, and how intense was the outbreak, ये सब क्या क्या वैक्सीन आए, क्या क्या न्यू अप्रूवल्स आए, किसने बनाया, वैक्सीन आया तो ऑफ कोर्स उसे किसी ने बनाया होगा, तो किसने मैन्युफैक्चर किया, डब्ल्यूएचओ के क्या क्या डिक्लेरेशंस थे, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज कब आई। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है 2020 कोविड का। साइंटिफिक बायोलॉजी जीके में क्या आएगा, विटामिन डेफिशिएंसी, हार्मोन्स के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, बेसिक फिजियोलॉजी, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबके एग्जांपल मैंने लगा दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेशंस प्रोवाइड करूं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में, सो आई कैन प्रोवाइड इट फॉर यू। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, हेल्थ न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां मैं स्टार लगा रही हूँ यही क्वेश्चंस, आप मुझे आके इसमें कमेंट करके जाना कि ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। So with like a lot of analysis, I have like decided कि यही सारी आपको चीजें पूछी जाएंगी, बिकॉज हम यूपीएससी के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जीके का हमारा कोई कोर सिलेबस नहीं है। सो वी लाइक ये पार्ट इसलिए इंक्लूड करते हैं दैट हाउ अवेयर यू आर इन योर फील्ड। लाइक आप पढ़ तो रहे हो थ्योरी, लेकिन क्या आप करंट अफेयर्स जान रहे हो, क्या मिशन डेवलप कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हर टाइम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, कौन कौन सी गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फॉर दी प्रेग्नेंट लेडीज क्या है, न्यूबॉर्न क्या है, एडोलेसेंस क्या है, ओल्डर एज के लोगों के लिए क्या है, एक आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पोषण अभियान मिड डे मील वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना होगा। अवार्ड्स एंड नोबेल प्राइज, हर साल हमको नोबेल प्राइज के विनर्स का नाम फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन हमेशा पूछा जाता है। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु रेगुलरली फॉलोज माय चैनल, आपको पता होगा कि आईसीएमआर का जब मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है उसमें मैंने स्क्रैच से चीजें बताई हैं, ठीक है। हर साल के जो फिजियोलॉजी के विनर्स हैं, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के, उनका मैंने सबका हर ईयर का नेम मेंशन किया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं या मुझे आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप उसे जरूर इंक्लूड कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। किस लिए मिला था, किस थीम पे मिला था, उन्होंने क्या रिसर्च किया, ये तो पता ही होना चाहिए। किसको मिला नाम याद ना रहे, किस चीज पे मिला ये तो याद होना ही चाहिए। और नाम अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। एक ना एक किसी साइंटिस्ट का नाम, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का नाम पूछा जाएगा या किसी रिसर्चर का नाम पूछा जाएगा। सो यू शुड नो अबाउट इट। व्हाट नॉट टू स्टडी, डीप पॉलिटी आपको नहीं पढ़ना है, डिटेल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जोग्राफिकल फैक्ट्स नहीं पढ़ने, ये सब नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। क्विक रिविजन क्या करना है, लास्ट 1 ईयर का हेल्थ करंट अफेयर्स उठा के पढ़ लो। आप मुझे बोलोगे सो आई विल प्रोवाइड इट टू यू इन पार्ट्स। मेन फोकस करना है डब्ल्यूएचओ पे और आईसीएमआर पे एंड देन डीबीटी पे। कवर गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस बायोलॉजी बेसिक्स, और इसी के क्वेश्चंस आपको रेगुलरली सॉल्व करने हैं। सो आई थिंक कि मैंने आपको बहुत कुछ चीजें बताई हैं। जीके का तो मैंने पूरा पूरा बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। एप्टीट्यूड का भी मैंने बता दिया, पीवाई क्यूज आपको बता दिया। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले इसी बात पे सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब करो प्लस लाइक करो। लाइक आई एम मेकिंग वीडियो एट जस्ट, कितना बज रहा है, 10:30 के आसपास हो रहा है, उतने बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। सो इसके अलावा भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में
मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अब पढ़ाई करना शुरू कर दो।